नमस्कार। इस बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं दोस्तों। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन से और उसमें भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आ रही है। और आप जानते हैं कल रात से तहलका मचा हुआ है जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने यानी चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट जो है वो जारी की है कि किस किस कंपनी ने चंदे दिए और किस किस पार्टी ने चंदे जो हैं यानी इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि आखिर वो मिलान कैसे हो, मिलान के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जो नंबरिंग है वो देना जरूरी है। और इसी मसले पर अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ इस मसले की सुनवाई कर रही है। सीधा अभी आपको ले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां इस मसले पर दो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ये दोनों इस पर चर्चा कर रहे हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट चलेंगे और वहां इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या डिमांड हो रही है, इलेक्शन कमीशन को लेकर क्या बातें हो रही हैं और एसबीआई को लेकर क्या बातें हो रही हैं, ये सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत कुछ है। क्या ये दुनिया का, देश का सबसे बड़ा घोटाला है, ये भी हम जानेंगे और समझेंगे कि किन किन कंपनियों ने किन किन पार्टियों को चंदे दिए। आइए चलते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। Taking the information from the political parties. So we just submitted as it is, we got not. So the entire data is with this honorable court. So what we could do is, Copy. we'll ask our office Yes. to scan and digitize the Yes. data which has been submitted to us. It might just take a day or so, I think, That's right. because they'll start doing it immediately. That can be postponed, mothers, they're putting it up on the website then. We'll say that as soon as the data which is available with us is scanned and digitized, that will be handed over to the originals will be returned to the election Right, commission. right. And they And will then then we will- immediately, immediately- upload That's it. fair enough. There's That's no like your objection. lordships indicated also on the last occasion. Now, just one thing, who's appearing for the State Bank of India? Because in our judgment, we had directed disclosure specifically of all details of the That's bonds, right. including the purchaser, the amount, and the date of purchase. They have not disclosed the bond numbers because That's that correct. had to be disclosed by the State Bank of India. Because if you see our judgment, Chip's judgment is quite clear on that. All details. so all details have to be furnished by the State Bank of India. I am for the government. And they had said in their own application that they have the bond numbers, etc. But they said that they were in two different silos. That's right. The SBI's application for extension was on the ground. SBI is not a party. They were here because they moved an application. Anyway, if they disclose the bond number, we have no problem with it. Lordships may issue That's notice all. to SBI, Manoj. Yes. Application My lord, may I mention, my lord? Lordships may issue notice to SBI, No, Manoj. no, there's no. an I'm application. requesting the honorable court. An application has been filed by the Election Commission of India seeking further directions. Stop. In the judgment, in the order of this court dated, what is it? 11th of March. 11 March 2024. 2024. This court had directed that the Election Commission of India, that ECI, shall upload on its website the data which was furnished to this court and which was being maintained in the custody of this court. While issuing this direction, the court had presumed that a copy of the data which was lodged before this court, before the registry of this court, would be available with the ECI. Mr. Amit Sharma, learned counsel appearing on behalf of ECI states that as a matter of fact, ECI did not retain any copy of the data which was collated by it, since it was being placed before this court in sealed custody. The request, therefore, of the ECI is that the data which has been filed in this court may be returned to it, so as to enable it to comply with the order of this court for uploading all the documents. Full stop. This request of the ECI has not been opposed either by Mr. Kapil Sibal or then senior counsel or Mr. Prashant Bhushan, then counsel. Mr. Vijay Hansaya will be so. Full stop. We accordingly issue the following directions: (1)
तो आप यहाँ सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट में सीधा ये मामला पहुंचा है इलेक्शन कमीशन पे। जो उनकी वेबसाइट पे जो अपलोड किया गया है वो अपलोड, यानी कि एसबीआई ने जो डाटा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो डाटा वहाँ उस नंबर के साथ, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर है, यूपीआई कोड जो है, उस कोड के साथ यहाँ देना चाहिए, ताकि मिलान कर सकें कि किस पार्टी ने किस कंपनी के जो इलेक्टोरल बॉन्ड जिसने खरीदे थे उसको भुनाया है। तो ये जानकारी और यहाँ देते हुए आपको हम, और उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश कि आखिर यहाँ से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है वो किस दिशा में जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि क्या ये इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। बहुत सारी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि इस देश में इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया जाता है ठीक 2019 के चुनाव से पहले, और उसके बाद 2019 में खासकर बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं बीजेपी को। किन किन पार्टियों को कितने पैसे दिए गए, उसके अलावा किन किन पार्टियों पर रेड करवाए गए, ईडी और आईटी के छापे पड़वाए गए, उसके बाद उन्होंने कितने चंदे दिए, उसके अलावा देश की जो टॉप पार्टियां हैं वो ये सारी चीजें। लेकिन इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो ऑर्डर ये है कि 18 मार्च तक, यानी आज 15 मार्च है, आज से ठीक 3 दिन बाद वो सारे नंबर भी डिस्क्लोज करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दे दिया है। यानी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो नंबर है, जिसको आप यूबी टॉर्च जला करके ही देख सकते हैं, वो नंबर भी, क्योंकि वो नंबर ऑलरेडी एसबीआई के पास है, वो नंबर भी यहां मुहैया कराने होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि वो नंबर हमको इन्होंने नहीं दिए एसबीआई ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी एसबीआई को यह आदेश दिया है कि वो नंबर भी यहां मुहैया कराए। तो बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट से यहां आ रहा है। और उसके अलावा आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं, और वो पहलू जो बातें हैं वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं इस देश में जो एक घोटाला है, वो घोटाला साफ दिखाई दे रहा है, उजागर होता हुआ सामने आ रहा है। इस पर हम अभी चर्चा करेंगे आगे आने वाले समय में, और चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़ेंगे और उन सब से हम आपको, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ यहाँ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए। अमलेंदु जी, क्या कुछ आप देखते, क्योंकि अभी कोर्ट का फैसला भी आया है, एक डायरेक्टिव फिर कोर्ट का, क्या कुछ है? देखिए राजीव जी, असल में जो हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि शायद एसबीआई जो है वो नंबर देना नहीं चाहेगा, उसमें कुछ हेराफेरी की जा सकती है, पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी। तो वही चीज़ें सामने आई है कि उसके बॉन्ड नंबर जो है वो एसबीआई ने नहीं दिए, और ये बात कल ही जो थी वो आ गई थी कि वो बॉन्ड नंबर जो नहीं दिए हैं, और ये बात एसबीआई की तरफ से भी आ गई थी कि बॉन्ड नंबर नहीं दिए गए, बाकी सारी जानकारी दे दी गई है। तो अगर वो नंबर नहीं दिए गए तो उसका ठीक से मिलान नहीं हो पाएगा कि वो कौन सा बॉन्ड किसको ट्रांसफ़र हुआ है। इसी को लेकर के आज जो थे पहुँचे थे कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर जो है आदेश दिया है सीजीआई ने कि इसको जो है आपको जो है सोमवार तक हर हाल में इसको आपको जमा करना है, नोटिस इसको एसबीआई को इशू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक बड़ा मामला है, मतलब जो हम लोग लगातार बात कर रहे थे कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है और आगे भी कुछ ना कुछ छिपाया जाएगा। तो छिपाने की चीज़ें लगातार चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद, और जबकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का आदेश है, उसको किस तरीके से आप देखिए कि एसबीआई जो है वो छिपाने की दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें सामने आई हैं। अब एसबीआई किसके दबाव में कर रहा है, जाहिर सी बात है कि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, वो साफ समझा जा सकता है कि किसके दबाव में ये चीज़ें सब छिपाने और दबाने की कोशिशें हो रही हैं। क्योंकि जिन कंपनियों के ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप है, उन कंपनियों ने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, और वो तमाम कंपनियां वो हैं जिन्होंने खरीदे हैं जिनके ऊपर ईडी या सीबीआई या एजेंसीज की रेड पड़ी हैं या उनके ऊपर आरोप हैं कुछ, और उन्होंने वो चंदे दिए हैं ज़्यादा मात्रा उसमें संख्या में। तो ये सब चीज़ें अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे, सामने आएंगी। तो कुल मिलाकर के जो छिपाने की कोशिशें हो रही हैं वो छिप नहीं पाएंगी, और चुनाव से पहले ही ये सारे जो है बड़ा मसला चुनाव में बनता जाएगा। राजीव जी जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव रंजन सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। राजीव जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और इस वक्त हम जब चर्चा की शुरुआत कर रहे थे राजीव जी, तभी उधर सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और उनके साथ प्रशांत भूषण, इन लोगों ने एक आपत्ति दर्ज कराई है, और वो आपत्ति है कि आखिर नंबर जिस मिलान की बात हो रही थी, यूवी नंबर जो है वो
इन्होंने एसबीआई ने वहां मुहैया नहीं कराए हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव अभी से थोड़ी देर पहले वो आया है कि आप एनी हाउ जल्दी से जल्दी, और ये 18 तारीख की शाम 5 बजे तक ये अपलोड कर दें वेबसाइट पर। तो एक बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है। और उसके अलावा कुछ चीजें आपके सामने, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर चर्चा में आते हैं, लेके आते हैं आपको। जरा स्क्रीन पर ले आइए टॉप 10 जो कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टीज को पैसे दिए। किस पार्टी को पैसा गया है ये नहीं पता, लेकिन टॉप 10 कंपनियां जो है वो देखिए, चंदा देने वाले टॉप 10 जो कंपनी है उसमें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज PR ये 1368 करोड़ रुपए, और मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मेघा इंजीनियरिंग की तारीफ आप इतना बता दूं आपको कि देश के सड़क मार्ग मंत्री जिनकी चर्चा खूब होती है, परिवहन मिनिस्टर जो हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जिनको कहते हैं नितिन गडकरी, उन्होंने खूब चर्चा की थी सदन के अंदर लोकसभा में। और सेकंड नंबर की ये दान देने वाली कंपनी है, 966 करोड़ रुपए दान देती है। किसको दान दी है ये आप उम्मीद कर सकते हैं, और लेकिन जैसे ही वो नंबर्स आ जाएंगे तो वो बातें और भी आप तक हम पहुंचाएंगे पूरी क्लैरिटी के साथ। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड जो है ये रिलायंस की सब्सिडरी है, तो रिलायंस ग्रुप की, और इन्होंने तीसरे नंबर पर 410 करोड़ रुपए। वेदांता लिमिटेड, आप जानते हैं वेदांता को, इन्होंने 400, अनिल अग्रवाल जिनके मालिक हैं, इन्होंने 400 करोड़। उसके अलावा हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़। भारती ग्रुप, भारती मित्तल आप जानते हैं एयरटेल, और उन्होंने 247 करोड़ रुपए। एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 224 करोड़ रुपए। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 220 करोड़ रुपए। और केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड 195 करोड़। मदन लाल लिमिटेड 185 करोड़। लंबी लिस्ट है दोस्तों, लेकिन उसमें से 10 को छांट के हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये आप देखिए, इसमें फ्यूचर गेमिंग, ये लॉटरी वाली कंपनी है और इसकी चर्चा कल से खूब चल रही है। जल्दी से आपके सामने रखना चाहता हूं टॉप 10 उन पार्टीज को जिनको कितने कितने पैसे मिले हैं, वो रखना यहां जरूरी है। फिर सीधे राजीव रंजन जी के पास आएंगे हम और समझेंगे कि क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी। जरा टॉप 10 चंदा देने वाले, चंदा पाने वाले टॉप 10 जो दल हैं, 10 बड़े दल, उनको देखिए आप। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 6060 करोड़ 50 लाख रुपए, यानी इसके बाद ये 60% लगभग हो सकता है। 47% और उसके अलावा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी जिसको कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये 1609 करोड़, 1610 करोड़ कह सकते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे है। आश्चर्यजनक है दोस्तों कि देश की दूसरी सबसे बड़ी, विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी तीसरे नंबर पे है चंदा पाने में। चंदा पाने में टीएमसी जो रीजनल पार्टी है जिसकी सरकार सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में है, वो नंबर 2 पे है चंदा पाने में। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस, जो पहले टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति होती थी जो पार्टी, वो बीआरएस अब हो गई और वो चौथे नंबर पे है बीआरएस, 1214 करोड़ रुपए। और उसके अलावा बीजू जनता दल, मोदी जी के दोस्त नवीन पटनायक, जो अभी 4 बार से चौथे टर्म सीएम है, 5वें टर्म के लिए लड़ रहे हैं। उड़ीसा में इस बार चुनाव भी है, उड़ीसा में विधानसभा का भी, 775 करोड़ रुपए। आप देखिए उसके अलावा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, आप डीएमके जिसको कहते हैं, तमिलनाडु की कंपनी, तमिलनाडु की पार्टी जिसके एमके स्टालिन वहां सीएम है और कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन है, 639 करोड़ रुपए। आगे की लिस्ट जरा जल्दी से ले आइए और देखिए वाईएसआर सीपी कांग्रेस पार्टी, ये जगन मोहन रेड्डी की पार्टी जो मुख्यमंत्री हैं वहां आंध्र प्रदेश में, 337 करोड़ रुपए। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी आप जानते हैं, इनके साथ गठबंधन अब हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है बीजेपी, उसके साथ 218 करोड़ रुपए या 219 करोड़ रुपए कह सकते हैं। शिवसेना जो जब टूटा नहीं था तब की बात है, 159 करोड़ रुपए। और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव 10वें नंबर पर 72 करोड़ रुपए, मात्र 72 करोड़ रुपए। और इनके अलावा बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी नहीं है, ऐसे कई दल नहीं है इसमें, बहुजन समाज पार्टी नहीं है। तो दान देने वाले जो हैं वो चुन चुन के किनको किनको देना है। लेकिन एक आश्चर्यजनक लिस्ट इसमें यह है कि कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे है और टीएमसी दूसरे नंबर पे है। चलिए अब यहां से बढ़ते हैं थोड़ा आगे और सीधे आते हैं राजीव जी के पास और उनसे समझते हैं कि राजीव जी,
और साथ में हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। लिस्ट टॉप 10 की यहां पे है। और राजीव जी, सबसे पहले आपके पास आऊं उससे पहले एक अपडेट ये भी दे दूं कि 18 तारीख को ये नंबर भी जमा मतलब एसबीआई मुहैया कराए, 18 को वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन अपलोड करे। ये अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लाइव देख लिया, ये आदेश कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा भी रहे थे। तो सीधा राजीव जी, क्या कुछ कहेंगे? मिलान नहीं हो सका है, लेकिन फिर भी पहले और दूसरे नंबर का गैप, पहले और तीसरे नंबर का गैप, और कांग्रेस पार्टी ड्रास्टिकली तीसरे नंबर पर, क्या मायने इसके रखे जाएं? चंदा में चंदा देने वाले कांग्रेस को ज्यादा पसंद नहीं करते, या तो भाजपा को या टीएमसी को, क्यों ऐसा? जी, मैं आपको आपके सवाल पे जवाब देता हूं, पर पहले जो आप लिस्ट दिखा रहे हैं इसमें दो करेक्शन करवा दूं आपसे। एक मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है, और जो 8वें नंबर पे दिखा रहे हैं आप वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन, ये दोनों एक ही ग्रुप की कंपनी है। यानी वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन जो है वो मेगा की ही सब्सिडरी है। तो मेगा ने जो दिया है वो 966 प्लस 220 जो भी आता है 1186 करोड़ रुपए, वो इस दो में है। और भी इनकी सब्सिडरी से यदि दिया गया होगा तो वो भी आपको आगे के उसमें मिल जाएगा। तो 1200 करोड़ के ऊपर मेगा इंजीनियरिंग ने दिया है। दूसरा 9वें और 10वें नंबर पे जो नाम है केवेंटर और मदन लाल लिमिटेड, ये भी सेम ग्रुप के ही हैं, क्योंकि मदन कुमार जालान जो ये हैं वो दोनों ही कंपनी के लीडिंग डायरेक्टर हैं। तो ये भी मतलब इसको भी प्लस करके आप जो है ना आप जोड़ के ये कर सकते हैं। तो ये हुई बात। और क्विक सप्लाई जो है, जैसा कहा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसकी एक सब्सिडरी है, तो वो एक आपकी पब्लिक के क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने बता दिया। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि भाई कांग्रेस नंबर 3 पे और तृणमूल नंबर 2 पे, तो ये सही में बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है। और मतलब ये सोचा नहीं था हम लोगों ने कि मतलब जो कांग्रेस है वो एक रीजनल पार्टी से भी कम डोनेशन उसको मिलेगा। यानी सप्लाई लाइन पूरा चोक करने की जो है पूरी तैयारी मेन अपोजिशन पार्टी की, जो नेशनल लेवल पे बीजेपी को टक्कर दे सकती है, उसका पूरा स्ट्रैटेजी तैयार हो गया है। आपने जो फ्यूचर गेमिंग जो नंबर 1 पे कंपनी बताई थी, वो कंपनी चलाते हैं सेंटियागो मार्टिन। सेंटियागो मार्टिन लॉटरी किंग भी उनको कहा जाता है, किंतु सेंटियागो मार्टिन बहुत ही क्लोजली काम करते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, थंगराजा टीएम के। ठीक है, ये जो है ये बहुत ही थंगराजा जी के साथ काम करते हैं बहुत ही क्लोजली। और थंगराजा जी को जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, सोर्सेस बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भाई उनको काम दिया गया था कि बीजेपी का इनरोड जो है वो कैसे सदर्न स्टेट्स में हो, क्योंकि सदर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ पे बीजेपी बहुत कमज़ोर है। तो चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, कर्नाटका में तो ऑफकोर्स दे आर स्ट्रॉन्ग। तो ये स्टेट्स में कैसे, खास तौर पे तमिलनाडु में और आंध्रा में कैसे इनरोड हो सके, उसके लिए ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के साथ और ये सेंटियागो जी बहुत क्लोजली काम कर रहे थे। और इन पे कई ईडी के रेड्स और ये सब भी पड़े हैं। तो सवाल ये उठता कि कल तक जिस आदमी का नाम भी लोगों को नहीं मालूम था, पता भी नहीं था कि सेंटियागो मार्टिन है कौन, किसी ने नहीं सोचा था कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे बड़ा डोनर बन के निकलेगा, यानी उसकी कंपनी निकलेगी। ओके, लोग सोच रहे थे कहाँ अदानी का नाम होगा, अंबानी का नाम होगा, टाटा ग्रुप होगा, बट वो तो कहीं इस पूरे लिस्ट में नजर ही नहीं आ रहे हैं। अंबानी का ऑफकोर्स क्विक सप्लाई जो है वो 410 करोड़ आप दिखा रहे हैं, बट आप इस बात को समझिए कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है इसका टर्नओवर लास्ट फिस्कल में 9.5 लाख करोड़ था, इसका प्रॉफिट ही 70,000 करोड़ के आसपास में था लास्ट ईयर। तो ये 400 करोड़ रुपए मतलब डोनेट कर रहे हैं, थोड़ी बात हजम नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब आप कहाँ 9.5 लाख करोड़ और उसका 410 करोड़ निकालने, कितना परसेंटेज रेवेन्यू का कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एक मतलब बड़ा ही अबनॉर्मल, बहुत ही एबिस्मली लो फिगर दिख रहा है ये। तो ये एक चीज हुई। तीसरी चीज देखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये दो बड़ी पार्टीज जो नॉर्थ इंडिया में कड़ी टक्कर दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को, अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस। ठीक है,
इनकी भी सप्लाई लाइन कंप्लीटली चोक जो है ना, समझिए कि उस तरीके से करने की कोशिश की गई होगी, क्योंकि कहीं भी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू इन दोनों पार्टी जो है टॉप 10 में इनका नाम नहीं आ रहा है। तो ये भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि भाई आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में है, पंजाब में, उनका नाम क्यों नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है भारत का, वहां पे जो मेन विपक्षी दल है उसको किसी भी तरीके का डोनेशन नहीं मिल रहा है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि जो लाइफलाइन रहती है, जो ब्लड है, कि किस तरीके से एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इलेक्शन लड़े जाते हैं। उस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में आप सप्लाई लाइन को चोक कर दो, यानी कैपिटल के इनफ्लो को चोक कर दो, तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो डिमिनिश होगा। ये हमको कंप्लीटली ये जो डाटा और ये फिगर से नजर आ रहा है। और चौथा जो मुझे सबसे बड़ा सरप्राइजिंग ये लगा कि इसमें टाटा का कहीं पे भी नाम नहीं है, उनके ट्रस्ट का भी नाम मुझे दिखा नहीं, और ना ही मुझे अदानी जी का नाम दिखा। आई मीन उनकी कोई भी सब्सिडरी कंपनी का कहीं मेरे को नाम नजर नहीं आ रहा है। तो आई एम क्वाइट सरप्राइज कि भाई ये पूरा डाटा रिवील किया गया है क्या, या अभी भी कुछ डाटा बचा हुआ है रिवील करने के लिए। जी, एक है अडानी के साथ में एक कंपनी वेल्सन करके है कंपनी, एक नवयुग भी है ना, ऐसी कुछ एक कंपनियां हैं, नवयुग का तो कंट्रोवर्सी आ रहा है, नवयुग पार्टनरशिप है वैसी कंपनियां। लेकिन अदानी की जो ओरिजिनल कंपनियां हैं, 10 टॉप कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां, उसका कहीं भी नाम नहीं है। लेकिन दूसरी एक बात यहाँ और भी है कि 22,317 बॉन्ड खरीदे गए, ये एसबीआई बताता है, और एसबीआई वहाँ हलफनामे में लिखता भी है। लेकिन जिन इलेक्टोरल बॉन्ड को यहाँ दिखाया गया है, लिस्ट जो दी गई है, उसमें 18,000 है। तो 3,000 बॉन्ड कहाँ गए? ये 3,000 बॉन्ड का डाटा क्यों नहीं है? जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया इस पे, उस ट्वीट को भी आप तक हम रखेंगे। लेकिन एक ओपनिंग कमेंट जरूर चाहूंगा, प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ आप देखते हैं? एक बहुत ही गंभीर मसला, और इस मसले को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ से घोटाले की एक बू आती है। और इतना ही नहीं, घोटाला हो ना हो, लेकिन एक डंडे की बू तो जरूर आती है, इसलिए कि जहां जहां डंडे मारे गए हैं उसके बाद या उससे पहले या कुछ लेना है तब आपने चंदे दिए। तो राहुल गांधी जो चंदे का धंधा कहते हैं, ये चंदे का धंधा खूब फल फूल रहा था, ये साफ दिखाई देता है। 19 से लेकर 24 तक, 15 फरवरी 2024 तक के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में नंबर 1 पे, और पीछे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, पीछे जितना भी देख लीजिए, इन सबसे बहुत आगे निकलती हुई बीजेपी इस चंदे के धंधे में। जी राजीव जी, ऐसा है कि इसमें 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। एक तो ये दिखाई दे रहा है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का नेक्सस है इलेक्टोरल बॉन्ड से, ये जांच का विषय है। और दूसरे की इंडिया गठबंधन से अपेक्षा है मेरी कि वो जो है जो ये बॉन्ड में नेक्सस है ईडी के अधिकारियों का, सीबीआई के अधिकारियों का, इनकम टैक्स के अधिकारियों का, ये जो ठेके मिल रहे हैं, इस पे कोई जांच कमीशन की बात करें। वो फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई जांच हो, और अगर इनकी सरकार आती है तो उसका वादा करें कि हम इसकी एक इंक्वायरी कमीशन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में कराएंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ राजीव जी, अब वो एग्जाम्पल बड़े चौंकाने वाले हैं। देखिए, जैसे फ्यूचर गेमिंग की आप बात कर रहे हैं, फ्यूचर गेमिंग जिसने सबसे ज़्यादा बॉन्ड खरीदे, चर्चा में है, वो अभी बात भी हो रही थी उसकी, उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ती है 2 अप्रैल को 2022 में, और वो बॉन्ड खरीदते हैं 7 अप्रैल 2022 को, यानी 5 दिन बाद उन्होंने बॉन्ड खरीद लिए। उसके बाद आप आइए, एक कंपनी है टोरेंट पावर, उसकी भी चर्चा अभी आप लोगों ने की। उसके यहाँ उसको देखिए 1540 करोड़ का टेंडर जो है उनको मिला, अवार्ड कब मिला? 7 तारीख को, 7 मार्च को, और 7 मार्च 2024 को, इसी साल। और वो बॉन्ड खरीदते हैं 10 जनवरी को। तो बड़ा सीधा सीधा उसमें नेक्सस जो है वो दिखाई दे रहा है। जैसे एक और कंपनी है शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स,
शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ता है 20 दिसंबर 2023 को, और 11 जनवरी को वो खरीद लेते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड। उसके बाद एक और कंपनी को मैं देखे, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स क्या इनकम टैक्स की रेट पड़ती है 4 अगस्त 2023 को, और 10 अक्टूबर को वो, उसी साल 10 अक्टूबर को वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं। उसके बाद आप देखिए माइक्रो लैब्स जो है वो, उसके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ती है 14 जुलाई 2022 को, और 10 अक्टूबर 2022 को वो इनकम टैक्स वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लेते हैं। एक डॉक्टर रेड्डी के यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ती है 13 नवंबर 2023 को, और 17 नवंबर 2023 को वो बॉन्ड खरीदते हैं, यानी 5 दिन बाद। तो ये मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूं कि ये जो एक नेक्सस दिखाई दे रहा है, इनकम टैक्स, ईडी की रेट, ठेके देने का, ये बहुत साफ दिखाई दे रहा है। इस पे सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में जांच करानी चाहिए, और इंडिया गठबंधन को ये घोषणा करनी चाहिए कि वो जांच का वो करे। दूसरी बात, मैं राजीव जी से सहमत हूं कि किस तरीके से मनी पावर जो है वो न केवल लोकतंत्र को हाईजैक कर रही है, वो भारत सरकार को हाईजैक कर रही है। ठेके मिल रहे हैं, ईडी के अधिकारी बिके हुए हैं, एक वसूली का धंधा जैसे होता है, वो वसूली का धंधा दिखाई दे रहा है बहुत स्पष्ट रूप से डेटा में अभी, जो कि बहुत ही आंशिक इस पर रिसर्च हुई है। 2-3 दिन बाद रिसर्च और आएगी इसमें। और एक आखिरी बात अभी फिलहाल के उसमें इंटरवेंशन में ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये आप देखिए कि रूलिंग पार्टीज, अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे, जिस भी जगह की रूलिंग पार्टी रही है जो मदद करती है अपने यहाँ पे लोगों को, उनको चंदे मिल रहे हैं। और वो मदद के उसमें इसका मतलब है कांग्रेस के पास भी सरकारें थी राज्यों में, लेकिन कांग्रेस के 3-4 सरकारों को उतना पैसा नहीं मिला उसकी वजह से जितना एक राज्य की सरकार तृणमूल कांग्रेस को मिल गया। इसका मतलब है कि कौन उद्योगपतियों को जो है वो आमंत्रित कर रहा है या उनको फायदा दे रहा है। अब आप देखिए कि ये तेलंगाना की पार्टी बीआरएस को इतना बड़ा पैसा मिला है, बीजेडी को पैसा मिला, समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं मिला पैसा? समाजवादी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद से सत्ता में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं है, तो जो सत्ता में नहीं है उनको पैसा नहीं मिला। ये बड़ा साफ एक नेक्सस दिखाई दे रहा है कि ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट सरकारों से घूस दिलाने का, इनकम टैक्स से बचने का, ईडी से बचने का और बड़े बड़े ठेके लेने का जरिया बन गया था। और ये इतना बड़ा घोटाला है राजीव जी कि ये निश्चित तौर पे मोदी साहब की इमेज को मैं कहूँगा कि ये बोफोर्स से भी बड़ा घोटाला है। हालांकि बोफोर्स अभी तक साबित नहीं हो पाया, इतने प्रधानमंत्री आ गए, इतने कोर्ट के फैसले आ गए, साबित नहीं हुआ बोफोर्स में कुछ भी। मैंने खुद सीबीआई के बीच में बरसों रहा हूं और बोफोर्स को ही देखता रहा, साबित कुछ नहीं हो पाया। यहां तो बिल्कुल एकदम जो लिंक है, जो चेन है वो दिख रही है, ट्रेल दिख रहा है, तो वो इससे नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते। मैं इसमें नितिन गडकरी या किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि सबको मालूम है कि ये सरकार चलती कैसे, कैबिनेट चलता कैसे है। ये वन मैन शो है, और ये उस वन मैन शो में सबसे बड़ी बात है, बार बार हम लोग चर्चा करते हैं, मैं आपके शो में कई बार चर्चा करता हूं कि ये ईडी के डायरेक्टर को 4 बार एक्सटेंशन क्यों मिल रहा था। ये फाइनेंस सेक्रेटरी को, विदेश सचिव को, तमाम सारे कैबिनेट सेक्रेटरी को, इस भारत के इतिहास के लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी हैं मिस्टर गौबा। तो ये एक्सटेंशन जो अधिकारियों को मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? कि ये नेक्सस चलता रहे। तो ये नेक्सस बहुत साफ विजिबल है, और इसमें ये चुनाव का मुद्दा होगा और मोदी साहब के लिए भारी पड़ेगा ये।
कह रहे हैं चुनाव का मुद्दा मोदी साहब के लिए भारी पड़ेगा। चुनाव बिल्कुल सामने है और आज 2 चुनाव आयुक्तों ने अपने पद को स्वीकार करते हुए और अपना काम शुरू कर दिया, यानी ऑफिस संभाल लिया है। उसके बाद वहां मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं कि चुनाव कब करवाए जाएं, उसके लिए कब इसकी घोषणा हो। और जैसा कल रात को हम लोग कह रहे थे, शायद 17 तारीख को सबसे अच्छा दिन होगा हेडलाइन मैनेज करने के लिए भी, क्योंकि 17 तारीख को इंडिया गठबंधन की मुंबई के शिवाजी पार्क में ज़बरदस्त एक बहुत बड़ी रैली है। और उस रैली से जो खबरें निकल के आएंगी, उससे बेहतर होगा कि चुनाव की खबरें दिन भर फ्लोट हों और शाम को प्राइम टाइम का वो मुद्दा भी बने। लेकिन उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से एक डायरेक्टिव वहां जारी किया है, एक फैसला दिया है। उस फैसले में साफ है कि 18 तारीख को, यानी आज से ठीक 3 दिन बाद एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर मुहैया कराने हैं और उसको अपलोड करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये एक क्योंकि 2 वकील, देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल, दोनों ने ये मांग रखी और सीजेआई ने इस मांग को अमल में लाते हुए और कह दिया कि आप मुहैया कराइए ये नंबर। और ये नंबर आने के बाद और भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इस बीच शेयर बाजार जो है वो लाल निशान पे है, लगातार लगभग सेंसेक्स 500 पॉइंट गिरा हुआ है। आगे क्या कुछ होता है और ये नंबर के बाद क्या खेल होगा, वो सब हम उस पर चर्चा करेंगे। आर्थिक मामलों के जानकार हमारे साथी राजीव रंजन सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इधर अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जरा ट्वीट अगर हो सके जयराम रमेश का, उसको अगर स्क्रीन पर ले आइए। बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है और उस ट्वीट लंबा है, लेकिन उसकी कुछ बातें आप लोगों तक रखना जरूरी है, इसलिए भी कि कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है दान पाने वालों में। एक पार्टी जो सिर्फ एक राज्य में, जहां 42 सीटें हैं लोकसभा की, उस राज्य में राज करती है। नाम है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ममता बनर्जी सीएम हैं लगातार दूसरी बार और उनको नंबर 2 पे रखा गया है चंदे के धंधे में। तो चंदा सबसे ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा वो बीजेपी के पास है। और उसको अगर अलग अलग ढंग से देखा जाए, समय के हिसाब से देखा जाए, और ये नंबर आने के बाद जब मिलान का काम हम लोग और करेंगे, जब चीजें आप तक लेके आएंगे, तो किस कंपनी ने किस पार्टी को पैसे दिए ये सब सामने होगा। लेकिन सबसे पहले जरा देख लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जयराम रमेश। जयराम रमेश लिख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद ये पहला विश्लेषण है जिसे एसबीआई ने चुनाव के बाद तक स्थगित करने के लिए के कई हफ्तों के प्रयास के बाद कल रात सार्वजनिक किया। 1300 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दान दिया है, जिसमें 2019 के बाद से भाजपा को 6000 करोड़ से अधिक का दान शामिल है। अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा भाजपा की कम से कम 4 भ्रष्ट नीति को सामने लाता है। पहला जो 4 भ्रष्ट नीतियों में पहली नीति जो उनकी है वो ये है कि चंदा दो धंधा लो। ऐसी कई कंपनियों के मामले हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दान किया है और इसके तुरंत बाद सरकार से भारी लाभ प्राप्त हुआ है। और इसके बाद क्या कुछ लिख रहे हैं जरा वो भी। इसमें दूसरा जो है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 800 करोड़, 800 नहीं बल्कि ये 1200 करोड़ है, अभी हमारे साथी राजीव रंजन सिंह साहब बता भी रहे थे। तो 1200 करोड़ रुपए वो, फिर 1400 इनको क्या ठेके दिए गए हम लगातार दिखा रहे हैं। फिर दूसरी बात इसमें दूसरा पार्ट जो है वो लिख रहे हैं कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जो है उसने 7 अक्टूबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए दिए और सिर्फ 3 दिन बाद वो 10 अक्टूबर 2022 को गारे पाल्मा 4/4/6 कोयला खदान हासिल करने में कामयाब हो गया। हफ्ता वसूली की बात, यहां नंबर 1 पे चंदा दो धंधा लो, उसके बाद हफ्ता वसूली। तो हफ्ता वसूली में भी ये लिख रहे हैं कि भाजपा की हफ्ता वसूली नीति बेहद सरल है। ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से किसी कंपनी पर छापा मारो और फिर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ्ता यानी दान मांगो। शीर्ष 30 चंदादाताओं में से कम 14 पर छापे मारे गए। 1-2 नहीं बल्कि 14 पर छापे मारे गए। उसमें से देख लीजिए आप जो कुछ नाम हैं उसमें है एक तो हेट्रो फार्मा है और यशोदा अस्पताल जैसी कई कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है। और यशोदा अस्पताल
दिल्ली एनसीआर के आसपास आप इस अस्पताल का नाम बहुत सुने होंगे। तो ये है, इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पर छापा मारा और जनवरी 2024 में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 40 करोड़ रुपए दान दे दिए। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स 1200 करोड़ रुपए, 1200 नहीं बल्कि वो लगभग 1350 करोड़ रुपए दान देने वाली कंपनी, और इसने अब तक यही है। और क्रोनोलॉजी समझिए, बता रहे हैं कि 2 अप्रैल 2022 ईडी ने फ्यूचर पर छापा मारा और 5 दिन बाद यानी 7 अप्रैल को उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए दान दे दिए। देखिए, 100 करोड़ रुपए दान दिया। अक्टूबर 2023 में आईटी विभाग ने फ्यूचर पर छापा मारा और उसी महीने उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 65 करोड़ रुपए दान दिया। रिश्वत लेने का नया तरीका, आंकड़ों में एक पैटर्न उभरता है। इन आंकड़ों से एक पैटर्न उभरता है जिसमें केंद्र सरकार से कुछ मदद मिलने के तुरंत बाद कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एहसान चुकाया है, या तो पहले लिया या बाद में, लेकिन एहसान चुकाया है। ये बहुत सारी बातें, रिश्वत का तरीका, वेदांता ग्रुप की बात लिख रहे हैं, मेगा इंजीनियरिंग की बात लिख रहे हैं, शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, चौथे नंबर पर है। ये सारी चीजें यहां आ रही हैं। 5वें नंबर को भी ले आइए तो शेल कंपनियों के अलावा चार है इसमें प्रमुख रूप से। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के माध्यम से एक बड़ा मुद्दा यह है कि इसमें यह प्रतिबंध हटा दिया गया है कि किसी कंपनी के मुनाफे का केवल एक छोटा प्रतिशत ही दान दिया जा सकता है, जिससे शेल कंपनियों के लिए काला धन डोनेट करने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे कई संदिग्ध मामले हैं, जैसे 410 करोड़ रुपए का दान क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड द्वारा दिया गया, और ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी पूरी शेयर पूंजी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है उसमें फाइलिंग के अनुसार ही सिर्फ 130 करोड़ रुपए है। तो ऐसी बहुत सारी बातें यहां लिख रहे हैं, उसमें नहीं जा रहा हूं। टेक्निकली बहुत बातें यहां आ भी रही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पहलू यहां पर जो है वो ये है कि कंपनियों को, एक तरफ कंपनियों ने दान दिए, दूसरी तरफ उन्होंने कुछ धंधे लिए। एक तरफ कंपनियों ने धंधे लिए और उसके बाद कुछ धंधे लिए। लास्ट पॉइंट जो लिख रहे हैं यहां पे कि जैसे जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा का विश्लेषण आगे बढ़ेगा, भाजपा के भ्रष्टाचार के कई मामले स्पष्ट होते जाएंगे। हम यूनिक यानी विशिष्ट बॉन्ड आईडी नंबरों की भी मांग करते हैं, ताकि हम दाताओं का प्राप्तकर्ताओं से सटीक मिलान कर सकें। और यही बात यहां पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि यूनिक नंबर जो है वो आप तत्काल प्रोवाइड कराइए। और उसके बाद आप देखिए, हब पावर कंपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हब पावर कंपनी जो है इसकी चर्चा खूब हो रही है कल से, और ये चर्चा हबको के नाम से ये कंपनी जानी जाती है। आप देखिए जरा, राजीव जी एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, जरा इसके बारे में जानकारी देखिए अपने साथियों को। 18 अप्रैल 2019 को हब पावर कंपनी, देखिए कई नाम है, 1 2 मतलब अगर गिनती करें तो 10 से ज्यादा बार हब के नाम हैं, हब पावर कंपनी। लेकिन दोस्तों आप देखिए इधर विकिपीडिया क्या कहता है। हबको इज द ओनली पावर प्रोड्यूसर इन पाकिस्तान विद 4 प्रोजेक्ट्स। 4 प्रोजेक्ट्स के साथ ये अकेला है। हबको कंपनी अकेली कंपनी है जो पाकिस्तान में पावर प्रोजेक्ट है इनका, यानी पावर प्रोड्यूसर है ये कंपनी। और ये आखिर इनका एनर्जी लिमिट, इनका जो है ये इंडिया से क्या लेना देना है। चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो CPEC जो है, उस कॉरिडोर के तहत ये कंपनी का पूरा काम चल रहा है। और द एनर्जी लिमिटेड, द आइनोवा, आगे नहीं इसमें कुछ है, लेकिन राजीव जी शायद और बेहतर बताएंगे इस कंपनी के बारे में। आखिर पाकिस्तान से पैसे यहां क्यों आए और किस कंपनी को गए, ये जरूर हम समझेंगे जब हमारे पास पूरा का पूरा वो लिस्ट आ जाएगी, वैसी लिस्ट जिसमें मिलान होगी कि किस कंपनी ने किस पार्टी को पैसे दिए हैं। लेकिन यहां साफ समझ में आता है कि 2019 में 15 फरवरी को 14 फरवरी को पुलवामा की घटना घटती है और पाकिस्तान से पैसे आते हैं 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को पैसे आते हैं, बिल्कुल ऐन चुनाव के वक्त। इस बीच ये जो चुनाव है वो राष्ट्रवाद की आंधी में अलग बहता हुआ दिखाई दे रहा था राजीव जी, और उसी राष्ट्रवाद में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे और पाकिस्तान से पैसे आ रहे थे। छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। जरा इस पे आपकी टिप्पणी राजीव जी। आपने जो बात बोली है ये तो मतलब पुलवामा इन रिवर्स ऑर्डर रेज टू द पावर 10 टाइम्स, ऐसा एटॉमिक बॉम्ब वाला आपने स्टेटमेंट दे दिया है कि फरवरी में पुलवामा हुआ और अप्रैल में
डोनेशन आया है कंपनी का जो पाकिस्तान में भी जिसके प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये तो जितने भी लोग नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज्म और इन सब की बात करते हैं, उनको बहुत धक्का पहुंचेगा जो बात अभी आपने की है। देखिए, ये जो है ये बहुत बड़ा एक जांच का विषय है। और जांच का विषय क्यों है मैं आपको बोलता हूं। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में भी कहा था कि 22,000 के आसपास में बॉन्ड सब्सक्राइब हुए थे। सब्सक्राइब यानी परचेज किए गए थे डोनर्स द्वारा। और जो कल लिस्ट रिलीज हुई है उसमें 337 पेजेस है। ओके, हर पेज पे 55 है, एटलीस्ट जो मैंने काउंट किया उसमें हर पेज पे 55 डोनर्स के नाम है। एक मिनट, प्लीज कॉल मी लेटर, आई एम इन मीटिंग। 55 हर पेज पे 55 डोनर्स के नाम है। ओके, तो इफ यू मल्टीप्लाई 337 बाय 55 तो ये जो 18,000 का 18,535 आ रहा है नंबर। तो 4,000 अभी भी 3,500 से 4,000 डोनर्स जो हैं, क्या उनके नाम नहीं दिए गए हैं? क्या वो सेंसिटिव नाम है? क्या वो छुपाए गए हैं? ये सारी चीजों की जानकारी जो है वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के पास में है। हम लोग सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं सिंपल अर्थमेटिक द्वारा जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। देखिए, पहले मतलब 2-4 दिन पहले तक क्या बातें आ रही थी सामने कि कहीं कुछ चाइनीज कंपनीज, खास तौर पे टिकटॉक, वाई, इस टाइप की कंपनीज, जैसे टिकटॉक के ऊपर में हमने लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, बाद में प्रतिबंध हटा दिया गया। तो कहीं इस टाइप की कंपनीज ने तो नहीं डोनेशन किया है इस टाइप की कंपनीज ने तो कहीं डोनेशन नहीं किया है। तो ये भी अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा ये पॉलिटिकल स्कैंडल है कि एक तरफ डोकलाम में हमारे सैनिक युद्ध कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम जो है चाइनीज कंपनी से पैसे ले रहे हैं। तो ये अब मालूम नहीं एसबीआई ने कुछ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन दिया है कि सारा इंफॉर्मेशन दिया है। मुझे तो अभी भी ताज्जुब हो रहा है कि अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर में परजुरी का चार्जेस क्यों नहीं लगाया गया। जो बैंक आके कोर्ट में बयान देता है कि मुझे 3 महीने लगेंगे और जून 30 तक का टाइम चाहिए, वही बैंक जब सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट वर्डिंग्स यूज करता है तो 1 दिन के अंदर में डाटा दे देता है। तो ये तो क्लियरली आप जो है कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तो परजुरी के चार्जेस में आप मतलब एक्शन होना चाहिए था एसबीआई के मैनेजमेंट और एसबीआई के हायर अप लोगों के खिलाफ, पर वो तो हुआ नहीं। तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है मैं उसको बड़ा मतलब मैं उसको 100% एकदम तार्किक रूप ये उन्होंने सही इंफॉर्मेशन दे दिया है। मैं इस पे मुझे थोड़ा मतलब ये न्यूज डाइजेस्ट करने में तकलीफ हो रही है क्योंकि इन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, एक गुमराह करने की कोशिश की थी। तो अभी क्या पूरे के पूरे 22,000 डोनर्स के नाम हुए हैं? हमने जो सिंपल कैलकुलेशन किया 18,500 18,535 ही डोनर्स के नाम आ रहे हैं। तो बाकी 3,500-4,000 डोनर्स कौन है? क्या ये फॉरेन कंपनीज की सब्सिडरीज हैं? ये कौन लोग हैं जिन्होंने डोनेट किया है और जिनका नाम नहीं मतलब अभी तक हम लोग के सामने आया? ये एक जांच का विषय है और इस पे जांच करना चाहिए। और जैसे प्रशांत टंडन जी ने पहले कहा कि भाई दिस इज ए क्लियर चेन ऑफ लिंक कि जहां जहां पर भी ईडी सीबीआई के रेट पड़े हैं वो कंपनीज थोड़े दिनों बाद बॉन्ड्स को सब्सक्राइब कर रही है, बॉन्ड्स को परचेज कर रही है। तो ये अपने आप में एक अलग मतलब ये तो विपक्षी पार्टियों ने उठाना चाहिए। ये तो मेरे या प्रशांत जी जैसे पत्रकार हम लोगों ने एक बात इंडिकेट कर दी है। नाउ द इंफॉर्मेशन इज इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक एंड इन अपोजिशन पार्टीज। अब वो क्या एक्शन लेती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे नजर में आई पॉलिटिकली वो ये है कि देखिए जो इंडिया गठबंधन के साथ में पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरीके से मन के साथ में नहीं जुड़ी हैं, उन्हीं पार्टीज को चंदा मिला है। या तो वो इंडिया गठबंधन में है किंतु उनका गठबंधन वास्तविक तौर पे गठबंधन नहीं है। जैसे तृणमूल कांग्रेस हुआ, पूरी 42 सीटों पे खुद अपने लोगों को उतार रही है और वो सेकंड हाईएस्ट बॉन्ड्स के लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरीज है। वैसे ही बीआरएस आपने नाम बताया, दे आर द 4th लार्जेस्ट, वो भी अगेन इंडिया गठबंधन में नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद में बीजू जनता दल का आपने नाम बताया, अगेन बीजू जनता दल जो है वो बीजेपी के साथ में है। तो ये जो पार्टीज या तो इनका अलायंस एनडीए के साथ में है या फिर ये इंडिया अलायंस के साथ में इनका अलायंस ही नहीं है। मतलब ये इंडिया अलायंस में है तो पर मन से जो रहता है मिलना, वो मिलान नहीं है इनका। एक सिर्फ डीएमके का नाम दिख रहा है मेरे को जो इंडिया अलायंस में बहुत ही स्ट्रांगली मतलब
मतलब उनका कांग्रेस के साथ में स्ट्रांग गठबंधन है। अदरवाइज आप देखिए आम आदमी पार्टी से लेके जितने भी हैं, मतलब जो स्ट्रांगली इंडिया अलायंस के साथ में समाजवादी पार्टी तक, वो लोगों का ना, वो लोग कहीं भी डोनर्स लिस्ट में नहीं है। तो एक इंडिकेटर आपने सही ट्रेंड पॉइंट आउट किया कि जो सत्ता में नहीं है उनको पैसे नहीं मिले हैं। दूसरा ट्रेंड, दूसरा इंडिकेटर इसमें यह दिख रहा है कि जो भी पार्टियां इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन में नहीं है या यदि है भी तो उनका सीट शेयरिंग ठीक से मतलब सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, वो पार्टी वन ऑफ द लार्जेस्ट बेनिफिशियरीज है। तो ये तो क्लियरली दिख रहा कि इलेक्शन के बाद हो सकता है ये अलायंस पार्टनर जाके इंडिया अलायंस से उठ के एनडीए में बैठ जाए, वी डोंट नो जी। इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का है कि इस पे इतना भरोसा क्यों दानदाताओं का, ये जानना जरूरी है। जरा प्रशांत टंडन जी, पहले आपके पास, आखिर इतना भरोसा ममता दीदी पर क्यों दानदाताओं का? हालांकि बहुत फर्क है पहले और दूसरे नंबर में, बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी। आपको तस्वीर याद है ममता बनर्जी की अडानी जी के साथ? तो वो तस्वीर का कमाल है। और दूसरा कि जैसे मैंने कहा राजीव जी कि इसका सीधा वास्ता इस बात से है कि वो पॉलिटिकल पार्टियां, जैसे मान लीजिए कि वामपंथी पार्टियां सत्ता में है केरल में, तो उनको चंदा नहीं मिला। इसका मतलब है कि कौन कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए या बॉन्ड खरीदने वालों के लिए अपने राज्य में रेड कारपेट बिछा रहा है। सीधा मतलब ये है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस के पास एक राज्य की सरकार है। आप 2018 से लेकर और अभी तक का आप देख ले हिसाब किताब, कांग्रेस के पास 3-4 राज्य हमेशा रहे हैं। उस वक्त पंजाब भी था, अब हिमाचल नहीं था लेकिन राजस्थान था, छत्तीसगढ़ था। तो छत्तीसगढ़ में तो कॉर्पोरेट का बड़ा इंटरेस्ट होना लाजमी है, वो माइनिंग स्टेट है। झारखंड में उनकी मिलीजुली सरकार है, बिहार में मिलीजुली सरकार रही है। तो कांग्रेस के पास भी सरकारें रही हैं, कर्नाटक में सरकार अब है, हिमाचल में है। तो 3-4 राज्यों में सरकारें कांग्रेस की रही हैं, लेकिन 3-4 राज्य वाले और जिसका कि नेशनल पॉलिटिक्स में स्टेक होल्डिंग इतनी बड़ी, वो किसी क्षेत्रीय पार्टी से पिछड़ जाए, इसका सीधा संकेत ये है कि कौन रेड कारपेट बिछा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी को नहीं पैसे मिले, क्योंकि उनकी बदकिस्मती बेचारों की ये रही कि इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया तो सत्ता से बाहर हो गया उसके पहले ही। जो सत्ता में है उसको ये घूस देने का पूरा एक जरिया है। दूसरी एक चर्चा आपने की हब पावर की। हब पावर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इसकी एक इंडियन सब्सिडरी है जो दिल्ली के गांधीनगर में रजिस्टर्ड है। देखिए, ये जो FCRA में अमेंडमेंट किया गया बॉन्ड की पॉलिसी में अरुण जेटली के द्वारा, उसमें ये बात ही थी कि FCRA को लिफ्ट किया गया था कि विदेशी कंपनियों की इंडियन सब्सिडरी चंदा दे सकती है। तो ये हब पावर का भारत में इसने कंपनी कब खोली, इसका भारत के बिजनेस स्टेक्स क्या है, ये जांच का विषय है। और क्या वो इतना चंदा देने का पैसा उनके पास है, पाकिस्तान में उनके क्या नेटवर्क है वो आपने बता दिया। तो ये अभी जांच का विषय है। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है राजीव जी कि भाषण देने की कला नरेंद्र मोदी के अंदर है। वो राष्ट्रवाद में बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो MSP और किसानों के लिए बड़े बड़े भाषण देते हैं, करते उसका उल्टा है। देश की जनता को अब ये समझना पड़ेगा, ये जो भाषण देने वाला शख्स है, इसकी पर्दे के पीछे की राजनीति क्या है। क्यों ईडी इतना पावरफुल है कि उससे कांपते हैं विपक्षी दल? क्यों ईडी इतना पावरफुल है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने में दल डरते हैं या छोड़ के भाग जाते हैं? ये जिसको वॉशिंग मशीन कहा जा रहा है, ये वॉशिंग मशीन के आपको कल पुर्जे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन की मोटर दिखाई दे रही है इस लिस्ट में आपको। ये है वॉशिंग मशीन की अंदर की सर्किट।
तो ये एक भारत जिसको हम इतना बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, दुनिया में नाम जो है वो भारत का इसलिए सम्मान से लिया जाता है क्योंकि भारत एक इस्टेब्लिश लोकतंत्र है। संविधानों की औसत आयु जो है 17-18 साल है पूरी दुनिया में। हम 75 साल पूरे कर चुके हैं। तो डेमोक्रेटिक इंडिया में इतना बड़ा खेल हो जाए, और ये 2014 से पहले ये बातें नहीं थी। देखिए राजीव जी, पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा से उद्योगपतियों के पैसे पे चलती रही हैं, लेकिन ऐसा नेक्सस बिल्कुल एकदम ब्लैक एंड वाइट हमने तो नहीं सुना भाई। हमें 35 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, हमने ऐसा नेक्सस नहीं देखा था कि इतना सीधा कि ये जांच होगी और ये रेट पड़ेगी, यहाँ से चंदा आएगा। पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है, वो अपना एक जोर जो है वो उसका एक होता है, एक ऑरा होता है उसका। और दूसरा कि एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिसी एडवोकेसी। बड़े बड़े औद्योगिक घराने, फिक्की, CII, तमाम सारे थिंक टैंक बनाते हैं जो अपने पक्ष में नीतियों के लिए बड़ी एडवोकेसी करते हैं। लेकिन ये तो पॉलिसी एडवोकेसी जैसी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब तो सीधे सिंगल विंडो सिस्टम है, पैसा दो काम लो, कैश एंड कैरी। तो ये कैश एंड कैरी जो है, ये पहली बात कि बंद होना चाहिए और देश की जनता की आंखें खोलनी चाहिए कि जिस व्यक्ति का भाषण आप सुन रहे हो वो पर्दे के पीछे जब आपके भाषण में नहीं होता तो वो क्या कर रहा होता है? वो ये कर रहा होता है जो लिस्ट दिखाई दे रही है। राजीव जी सही कह रहे हैं, जो लिस्ट दिखाई दे रही है, लिस्ट सामने है। चंदा देने वाले टॉप 10 कंपनीज कौन कौन से हैं और कौन कौन सी कंपनियों ने 10 बड़े दलों को सबसे ज़्यादा चंदा दिए। बड़े दल हो गए क्योंकि चंदा लिए, और उसमें सबसे नंबर 1 पे है भाजपा। भाजपा के बाद टीएमसी के बाद ज़रा उस लिस्ट को ले आइए ऊपर। टीएमसी के बाद कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अलावा भी आप देखिए यहाँ बीआरएस है, यानी जो तेलंगाना की पार्टी, टीआरएस पहले होती थी, के चंद्रशेखर राव की पार्टी, और उनके अलावा बीजू जनता दल है, उड़ीसा राज कर रहे हैं, 4 बार से मुख्यमंत्री हैं। डीएमके है, एमके स्टालिन। इनके अलावा भी 3-4 पार्टियां हैं, ज़रा उसको भी ले आइए लिस्ट में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, YSRCP यानी जगन मोहन की पार्टी, वो भी CM है वहाँ। तेलुगु देशम पार्टी, TDP, और उनके अलावा शिवसेना, टूटी हुई नहीं, जुड़ी हुई शिवसेना, और राष्ट्रीय जनता दल बिहार, लालू प्रसाद यादव की पार्टी। और ये सारी पार्टियां 10 टॉप 10 पार्टियां। लेकिन आप देखिए 10वें नंबर पे हैं RJD, और मात्र 72 करोड़ रुपए इनको चंदा मिला है। और जो एक राजीव जी जो बात कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट, कि जहां जहां सरकारें हैं और वहाँ उनको चंदे दिए गए हैं, जिन जिन पार्टियों की सरकार है उनको चंदे, और उसमें ये तमाम दल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे थे प्रशांत टंडन जी की, आखिर टीएमसी को 2nd नंबर पे क्यों चंदा इतना दिया गया है, और उसके पीछे अदानी के साथ तस्वीर ममता बनर्जी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर थी, और उसके बाद से शायद चंदा देने की वहाँ लाइन लग गई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी जो कई राज्यों में जिसकी सरकार रही, पिछले 2019 में देखें तो 2018 में 3 राज्यों में सरकार आई थी इनकी। छत्तीसगढ़ में सरकार आई थी, मध्य प्रदेश में आई थी, और इनकी सरकार राजस्थान में आई थी। मध्य प्रदेश में सरकार इनकी चली गई थी, और ऐसे ही कर्नाटक में इनकी सरकार आई थी, वहाँ से कर्नाटक की सरकार इन्होंने छीन ली थी। तो 2 जगहों पर सरकार आई, चली गई। महाराष्ट्र में भी इन लोगों ने सरकार बनाई थी मिलकर, और उसके बाद भी उतना चंदा इनके पास, कांग्रेस के पास नहीं, उस दौरान भी नहीं। अगर उस दौरान की बात करें, वो चार्ट भी हम थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि 2019 में किस पार्टी को कितने चंदे मिले, 20 में किस पार्टी को कितने चंदे मिले। अगर उस लिस्ट को भी आप देखेंगे तो 2019 में चूंकि चुनाव का वक्त था, उस समय भी लगभग 2000 करोड़ रुपए का चंदा मिलता है। ऐन चुनाव के वक्त, अप्रैल का महीना, पाकिस्तान से पैसे आते हैं, बीजेपी के पास पैसे आते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है एक तरफ, जहां ये देखिए यहाँ लिस्ट है ऑलरेडी 17, 18, 18, 19, 19, 20, ये लिस्ट थोड़ा अगर बड़ा कर सकते हैं तो उसको बड़ा कर लीजिए। तो पहले, दूसरे, तीसरे, ये सब जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि
18-19, 19-20 में देखिए, क्योंकि चुनाव का वक्त था, बीजेपी को 2,500 यानी 2,555 करोड़ रुपए, थोड़ा ऊपर, हाँ 2,555 करोड़ रुपए, कांग्रेस पार्टी को 317, फिर टीएमसी बाकी नीचे, वैसे ही आगे दूसरे दल, फिर 2020-21, फिर 21-22 ये 65,166 हज़ार, और ये थोड़ा इसमें ये अपडेटेड नहीं है, इसमें टीएमसी ये 2017 से आ रहा है। हाँ, ये 17 से आ रहा है, जबकि जो एसबीआई ने डाटा दिया है वो 2019 से। तो बिल्कुल वही जयराम रमेश कह रहे हैं कि 2017 से लेकर के 2019 के बीच का डाटा कहाँ गायब है, हाँ, क्यों नहीं दिया है। हाँ, ये जो डाटा है पार्टी वाइज डोनेशन थ्रू बॉन्ड्स इन रुपीज़, हाँ, लेकिन ये 2017, 18, 19 के डाटा कहाँ हैं, ये भी है, ये भी पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव दिया है जिस बारे में हम चर्चा कर रहे थे अभी अमलेंदु जी, और उस डायरेक्टिव में सीधा कहा गया है कि आप 19 से लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला ये सुनाया है क्योंकि बॉन्ड को जो प्रभावी किया गया था 19 से किया गया था, इसलिए बॉन्ड 19 का मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, और वो लिस्ट आप, वो सूची इलेक्टोरल बॉन्ड का जो नंबर है, जो यूवी अल्ट्रावायलेट रे के साथ उसको देखा जाता है, वो नंबर जो है वो आप मुहैया कराइए। और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? एक तो शुरुआत में सीबीआई ने पूछा कि एसबीआई की तरफ से कौन उपस्थित हो रहा है, और अभी तक उन्होंने बॉन्ड का नंबर जो है उसका खुलासा क्यों नहीं किया, जो कि एसबीआई को करना होगा। तो उस पर जो एसजी उपस्थित थे उन्होंने कहा कि मैं एसबीआई की तरफ से नहीं हूँ। जब उन्होंने ये कहा कि मैं एसबीआई की तरफ से नहीं हूँ, तब फिर सीजीआई ने वो आदेश सुनाया, फिर कहा कि संविधान पीठ के फैसले में एसबीआई को ईसीआई को चुनावी बॉन्ड जो भुनाए गए सभी विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, जिसमें खरीद की तारीख, क्रेता का नाम, खरीद मोचन की तारीख शामिल थी। ये बताया गया कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की विशिष्ट अल्फा संख्यात्मक संख्या का खुलासा नहीं किया है। एसजीआई का कहना है कि एसबीआई को नोटिस जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 तारीख की शाम तक जो है ये नंबर भी देने के लिए एसबीआई को आदेश दिया है, और सीजीआई ने कहा कि हमारा आदेश स्पष्ट था कि आपको ये नंबर भी देने हैं। इसका मतलब कि अब दो कंटेम्प्ट अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एसबीआई के ऊपर चल सकते हैं। एक तो आपने 6 मार्च तक की जो आदेश था एसबीआई का, आपने उसको नहीं माना, तो उसको एसबीआई ने आपको ये छूट दी थी कि आप इसको सोमवार तक हलफनामा दाखिल करें और 12 मार्च की शाम तक आप जाकर के दे दें डाटा। अब 12 मार्च तक आपने डाटा तो दिया, लेकिन आपने वो नंबर नहीं दिए, और ये बहाना बनाया कि ये सुरक्षात्मक की वजह से हम नंबर ये नहीं दे रहे हैं। तो सुरक्षा की बात थी नहीं, चूँकि उसको खारिज कर चुका था सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में ही। उसका आदेश स्पष्ट था कि कोई सुरक्षा नहीं, आपको नंबर देने हैं, मिलान जो करना होगा वो लोग कर लेंगे, आपके पास जो डाटा है वो आपको देना है। यानी कि एक अब कंटेम्प्ट अब जो है वो निश्चित तौर पर चल सकता है कि आपने दोबारा जो संविधान पीठ ने आदेश दिया, जो स्पष्ट आदेश था, उसमें यह भी था कि आपको नंबर भी बताने हैं, वो नंबर आपने नहीं दिए और आपने हलफनामा जाकर के दायर कर दिया कि हमने जो है सूचना दे दी है चुनाव आयोग को। तो ये राजीव जी एक बड़ा मसला जो है, इसमें एसबीआई फंस सकता है 18 तारीख तक। हालांकि उसको ये देनी है सूचना और देनी ही पड़ेगी, और नहीं देते हैं तो फिर कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। अभी भी आप दे देते हैं तब भी कार्रवाई हो सकती है अगर दूसरे लोग चले जाते हैं कि साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है। यानी कि डेलिबरेटली किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तोड़ने मरोड़ने की और किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिशें की जा रही है। क्योंकि वो नंबर आ जाएंगे जब, तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा बॉन्ड किसने खरीदा था। जैसे मान लीजिए फ्यूचर गेमिंग ने बॉन्ड खरीदा, तो वो किसको दिया, उसने कांग्रेस को दिया कि भारतीय जनता पार्टी को दिया कि बीआरएस को दिया, किसको दिया मालूम हो जाएगा। टोरेंट कंपनी ने लिया अगर, तो टोरेंट कंपनी वो बॉन्ड नंबर जो था वो किसने भुनाया उसको, वो चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। अब ये तो केवल एक कयास लगाया जा सकता है कि भाई आज 10 तारीख को बॉन्ड खरीदा गया था और वो 15 दिन के अंदर उसको भुनाया जाना है, तो 15 दिन के अंदर वो किस पार्टी ने भुनाया है। तो एक कयास लगाए जा सकते हैं कि ये बॉन्ड खरीदे गए थे। वो अब कयास की बात नहीं रहेगी, वो नंबर आने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस कंपनी ने जो बॉन्ड खरीदा था उस बॉन्ड को किस पार्टी ने भुनाया है। तो बहुत सी चीज़ें फिर एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी तक जो बातें आ रही हैं कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला है, और ईडी की छापेमारी के बाद किसने बॉन्ड खरीदे हैं, या सीबीआई के बाद किसने खरीदे हैं, या जिसने खरीदे हैं उसको किस तरीके से जाकर के लाभ मिले, वो सारी चीज़ें एकदम से सामने आ जाएंगी। जैसे टोरेंट कंपनी का जिक्र कर रहे थे प्रशांत जी, उसके सामने राजीव जी मेरे पास उसकी 3 खबरें पड़ी हुई हैं असल में। वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो खबरें हैं क्या असल में। उसमें खबरें ये है कि एक तो अभी फरवरी की खबर है कि उसके शेयर जो हैं वो एकदम से बढ़े और उसमें 110% की बढ़ोतरी, और वो अखबार की हेडिंग है कि गुजरात सरकार से 4 डील होने के बाद उस कंपनी के शेयर एकदम से उछाल आया है। अब आप समझ सकते हैं
गुजरात सरकार से 4 डील हुई है, उसके बाद इसमें शेयर आया में उछाल आया है। इसी तरीके की बहुत सी सारी जो है वो ये देखिए 47 करोड़ की सरकारी डील और 47,000 करोड़ की सरकारी डील और पावर कंपनी के शेयरों में दौड़ गई बिजली, पैसा लगाने वाले मालामाल। इसी तरीके से एक जो जिंदल कंपनी का बार नाम आ रहा है, और जिंदल का देखिए राजीव जी, जिंदल का कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से भी है, जिंदल का कनेक्शन उड़ीसा से भी है, दोनों से। नहीं, लेकिन ये वो जिंदल नहीं है। हाँ, उस जिंदल पावर एंड कंपनी लिमिटेड जो है वो नवीन जिंदल की है, और पाकिस्तान वाला जो है मामला वो सज्जन उनके बड़े भाई उनके बड़े भाई सज्जन जिंदल का है। लेकिन दोनों भाई भाई हैं, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन, कंपनी अलग अलग है, बिल्कुल। लेकिन जिंदल ग्रुप के ऊपर, नवीन जिंदल के ऊपर जब छापा पड़ता है तब जाकर के बॉन्ड खरीदे जाते हैं, ये भी है बिल्कुल। इसी तरीके से वेदांता के ऊपर छापा पड़ता है, उसके खिलाफ ये आता है कि वीजा को दिलाने में इन्होंने हेराफेरी की है, तब जाकर वो बॉन्ड खरीदे जाते हैं। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? एक बात और राजीव जी, आपको याद होगा कि तेलंगाना का जब चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी ने कहा था कि ये कालेश्वरम परियोजना केसीआर का एटीएम है। वो कालेश्वरम परियोजना ये मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और 1241 करोड़ रुपया टीआरएस को मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या कनेक्शन हैं जी। कनेक्शंस, यही कनेक्शन तो जोड़ने की जरूरत है। और दोस्तों, इस आप लोग भी थोड़ा सा ये भूल भुलैया में कहीं अटक जा रहे होंगे, और हमारे दोनों साथियों के बीच आता हूं, राजीव जी के पास भी, प्रशांत जी के पास भी। लेकिन थोड़ा सा एक बात जरा अपने साथियों के लिए, कि ये आंकड़ों का खेल नहीं है दोस्तों, ये खेल जो है ये सियासी खेल है, जिसमें आपको, हमको, सबको लूटा जा रहा है। ये तय मानिए कैसे लूटा जा रहा है, वो इस ढंग से कि आप आपस में तो खेल कर रहे हैं, आपस में इतने चंदा इधर से उधर, वो चंदा नहीं दिया तो आईटी ईडी के छापे पड़वा के चंदे ले लिए, कुछ प्रोजेक्ट्स दे दिए। लेकिन आप यहां अब की बार भ्रष्टाचार पर वार का नारा देने वाली सरकार जो आई थी 2014 में, वहां से लेकर अभी तक जो एक बिल्कुल एक साफ सुथरी छवि बनाई गई जिस सरकार की, उसके दामन पर दाग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए चर्चा जरूरी है, यह समझना, यहां जानना जरूरी है कि क्या सरकार, और यह भ्रष्टाचार की बात यहां इसलिए बार बार हम लोग कह रहे हैं क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर ही छीन ली गई थी जनता के द्वारा, और नरेंद्र मोदी को बैठाया गया था उस कुर्सी पर। तो आज क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी पाक साफ है? ये यहां हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से एक एक करके आना चाहता हूं। पहले प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे थे। प्रशांत जी। सज्जन जिंदल का नाम ले रहा था कि सज्जन जिंदल वही बिजनेसमैन है जिन्होंने नरेंद्र मोदी साहब की नवाज शरीफ से मुलाकात करवाई थी, जब वो बिना निमंत्रण के पहुंच गए थे उनके पारिवारिक विवाह में, और उनकी माता जी के भी शॉल वॉल देकर आए थे उनको। तो सज्जन जिंदल के पाकिस्तान से काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी। जी, मैं 2-3 चीजें सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। मतलब ये पूरे आज के कन्वर्सेशन का क्या टेकआउट है, पैटर्न्स कुछ आए हैं। पहला पैटर्न जो नजर आया है सामने वो ये है कि भाई टाटा, अंबानी, अदानी, ये जो इंडिया के 3 बड़े ग्रुप्स हैं, इनका डोनेशन के इसमें सीधे तौर पे कहीं भी नाम नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण नंबर्स देखिए बताऊं ताकि आपके दर्शकों को समझ में आए। टाटा ग्रुप जो है, इसका यदि आप FY23 यानी लास्ट ईयर का टोटल आप देखेंगे टर्नओवर, तो वो 12 लाख करोड़ के आसपास रहा है। ऐसे ही रिलायंस जो है, उसका टर्नओवर 9.7 लाख करोड़ के आसपास में रहा है, और अदानी ग्रुप का टर्नओवर 2.6 लाख करोड़ के आसपास में रहा है। अब इन तीनों में से जो इंडिया की सबसे बड़ी 3 कंपनीज हैं, इन तीनों में से एक का भी नाम सामने नहीं आना। और ये आपको टर्नओवर मैंने इसलिए बताया कि आपको समझ में आया कि इनका मतलब कितना लार्ज स्केल पे ये ऑपरेट करते हैं। बिहार जैसा राज्य, इसका बजट लास्ट ईयर का कितना था आपको, 2.5 लाख करोड़ के आसपास में, यानी कि वो 4 गुना छोटा है लगभग रिलायंस के टोटल ऑपरेशन से। महाराष्ट्र जो कि जहां पे मैं रहता हूं, जो मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है इंडिया का, उसका बजट जो है 5.5 लाख करोड़ का है। तो आप सोचिए, उससे मतलब लगभग दुगना साइज जो है वो टाटा का है। तो ये मैं साइजेस का कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि कितने व्यापक लेवल पे ये कंपनीज ऑपरेट करती हैं। उसके बावजूद भी, और जबकि ये बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में जहां गवर्नमेंट के साथ इनको कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ता है, तो ऐसा कैसा है, कैसे पॉसिबल है कि इन कंपनीज का नाम इन इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में कहीं पे भी हमको सीधे तौर पे नजर नहीं आ रहा।
और ये मार्टिन, सेंटियागो मार्टिन, जिनका नाम कल तक किसी को नहीं मालूम था कि कौन है सेंटियागो मार्टिन, व्यापक स्तर पे मतलब लोग नहीं जानते इनको, एज जेम्स बॉन्ड के किरदार टाइप कुछ ऐसा नाम दिख रहा है सेंटियागो मार्टिन। ये सडनली बिगेस्ट डोनर करके उभर के आए हैं। तो ये एक बड़ी बहुत बड़ा एक संदेह पैदा करता है कंप्लीटली लिस्ट के ऊपर में कि कोई कौन किसका फ्रंट बन के काम कर रहा है, वी डोंट नो। मतलब ये लोग वाकई में ये खुद ही डोनर्स है कि ये किसी के फ्रंट है कि क्या है। तो पहला पैटर्न, पहली चीज मैं ये बताना चाहता था। दूसरा ये कि देखिए, आम आदमी पार्टी जैसे बताया, समाजवादी पार्टी बताया, ये वो पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस के साथ में बहुत क्लोजली कांग्रेस के साथ में बहुत ही क्लोजली लिंक्ड होकर इंडिया अलायंस, फॉर्मिडेबल अलायंस इन्होंने दिया है बीजेपी के अगेंस्ट में। और हम देख रहे हैं कि भाई इनका पूरा मनी फ्लो जो है उसको काटने की कोशिश की गई है, वो ब्लड सप्लाई को काटने की कोशिश की गई है। तो ब्लड सप्लाई, यदि आपको ब्लड नहीं मिलेगा तो बॉडी सुचारू रूप से काम कैसे करेगी? तो जनता को जो ये टेक अवे इस पूरे इससे लेके जाना चाहिए, वही लेके जाना चाहिए कि ये आखिरी मौका है आपके पास में, सोच विचार करके यदि आप वाकई में पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म को आप मानते हैं और ये विचार यदि आपके बुद्धि में कहीं अंदर तक दबे हैं, तो आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ दीजिए जिनको निस्त नाबूद करने का एक प्रयास किया जा रहा है बाय यूजिंग कैपिटलिस्ट रिजीम और बाय यूजिंग कैपिटलिस्ट पीपल। यहां पे हमको कंप्लीटली नजर आ रहा है कि भाई कैपिटल जो है वो सिर्फ उन्हीं पार्टीज को जा रहा है जो बीजेपी के बहुत ज्यादा क्लोज है या बीजेपी को जा रहा है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आप एक तरफ एक आदमी को शक्तिमान बनाए जा रहे हो, सर्वशक्तिशाली बनाए जा रहे हो, और वहीं दूसरा जो तबका है वो एकदम सर्वहारा है, कमजोर है। तो हमको सर्वहारा कमजोर लोगों का साथ देना चाहिए कि हमको सर्वशक्तिमान का साथ देना चाहिए? ये जनता के ऊपर मैं इस चीज को छोड़ देता हूं, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच एक कॉन्क्लेव में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये माना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं है, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन पहले से बेहतर है उनका कहना है। और उसमें उनका ये भी कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए ट्रांसपेरेंसी है और वाइट मनी ही है, यानी कि पैसा जो है एक नंबर का पैसा वही है। लेकिन यहाँ समझना चाहता हूँ आप दोनों साथियों से, प्रशांत जी से पहले फिर आता हूँ राजीव जी, आपके पास भी इधर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। प्रशांत जी, क्या ये पूरे वाइट मनी हो सकते हैं? क्या पूरा वाइट मनी है ये? देखिए, ये वाइट मनी कितना है इससे ही पता चलता है कि जो मैंने थोड़े से एग्जाम्पल दिए, और अभी मैं और कुछ और एग्जाम्पल भी दूंगा, कि जिनके यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी, जिनके यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़े, उन्होंने ही चंदे दिए। 30 कंपनियां ऐसी जिन्होंने सेंट्रल एजेंसियों के एक्शन के बाद चंदा दिया बड़ा बड़ा। एक बात। दूसरी बात जो राजीव जी कह रहे हैं कि इसमें बहुत सी कंपनियां, और मुझे तो फ्यूचर गेमिंग के जो अमाउंट है उसको लेकर भी शक पैदा हो रहा है कि क्या ये तमाम कंपनियां कोई किसी बड़े ग्रुप्स के फ्रंट हैं? इनके पीछे कौन है? ये कठपुतलियों की डोर किसके हाथ में है? तो ये तमाम जो है कंपनियों के राज अभी खुलेंगे। अभी तो आज पहला दिन है ना राजीव जी, कल ही रात में लिस्ट आई है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इतना रिसर्च अगर पत्रकारों ने कर दिया है तो जो एजेंसियां नहीं कर पाई इतने साल में, तो ये क्रेडिट तो पत्रकारों को देना चाहिए कि इतना कुछ मिलान हम पत्रकारों ने, हमारे साथियों ने, हम लोगों ने कर लिया है। दो एक एग्जाम्पल और देता हूँ राजीव जी आपको, तो और बात करने में ठीक रहेगा। एक एप्को इंफ्रा नाम की कंपनी, आपने भी शायद नाम लिया उसका, इनको जी ठेका मिला, इन्होंने बॉन्ड खरीदा 10 अक्टूबर 2022 को, और 24 जनवरी को इनको ठेका मिल गया था 9,000 करोड़ का वर्सोवा सीलिंग का। अब आप देखिए, एक अरबिंदो फार्मा नाम की कंपनी है, 10 नवंबर 2022 को उनके मैनेजिंग डायरेक्टर गिरफ्तार हो गए थे ईडी के द्वारा।
और 5 दिन बाद उन्होंने बॉन्ड खरीद लिए 15 तारीख को। A1 साइकिल्स, इसका भी शायद आपने नाम लिया। A1 साइकिल के बारे में हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर ने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड का आरोप लगाया 23 दिसंबर 2023 को, और ये पैसा दे चुके थे इलेक्टोरल बॉन्ड में। तो कई बार पैसा देने वालों पे भी बिजली गिरी है। डॉक्टर रेड्डी का मैं नाम दे चुका हूँ, बता चुका हूँ कि उन्होंने 13 नवंबर को उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी और 17 नवंबर को उन्होंने बॉन्ड खरीद लिए, 5 दिन बाद बॉन्ड खरीद लिए। तो ये जो पूरी लिस्ट है, ये जो पूरे जो चेन लिंक हो रहा है कि कब छापे पड़े, कब ठेके मिले, कब उन्होंने बॉन्ड खरीदे। अब इसमें किसी पार्टी का नाम आए ना आए, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक और तमाम देश की जनता इतनी समझदार है कि वो ये चंदे किसको दिए गए होंगे, उसकी मंशा क्या है। तो एक बात। दूसरी बात की जो मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, इसकी बहुत गहन जांच की जरूरत है, और केवल इसने डेमोक्रेसी का ही हालत नहीं खराब की है, पॉलिटिकल पार्टीज की हालत नहीं खराब की है, इसने एक हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट को भी प्रभावित किया है। मैं कह रहा हूं कि तमाम जो एडवोकेसी की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो फिक्की है, चाहे CII है, वो बेमतलब की हो गई हैं। कोई मतलब नहीं रह गया पॉलिसी एडवोकेसी, कोई मतलब नहीं रह गया लॉबिंग का। अब तो सीधा सीधा मामला है कि बॉन्ड लो, ठेका लो, बॉन्ड लो, काम कराओ, बॉन्ड लो, ED को दूर रखो, बॉन्ड लो, CBI को दूर रखो, गिरफ्तार हो गए हो, केस विड्रॉ होना है, बॉन्ड ले लो। तो ये जो पूरा एक सिस्टम सामने आ गया, मुझे लगता है केवल भारत का नहीं, पूरी लोकतांत्रिक दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। अभी आजकल राजीव जी, अमेरिका के इलेक्शन की प्राइमरीज हो रही हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट के दोनों कैंडिडेट आ गए, ट्रंप वर्सेस जो बाइडेन होगा। ये दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां, अमेरिका जो कि कैपिटलिस्ट कंट्री का मक्का माना जाता है, वो कंट्री में उनको चंदा वसूलते हैं। वो चंदा किनसे लेते हैं? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से। तो वो लंच या डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं। उस लंच और डिनर में $5,000 का या $1,000 का या $10,000 का टिकट होता है। वो टिकट खरीद के लोग लंच डिनर में जाते हैं, ट्रांसपेरेंट तरीका है, पैसे देते हैं वो। तो उनकी ज्यादातर फंड रेजिंग इसी तरीके के इवेंट से होती है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि राजीव जी कि बड़े बड़े ग्रुप, टाटा, अंबानी और ये अडानी के नाम नहीं आ रहे। एक बात कि ये फ्रंट कंपनीज के जरिए ऑपरेट कर रहे होंगे, ऐसा मेरा शक है। दूसरा कि आप जरा बीजेपी के चंदे को मिलाइए कि बीजेपी को बॉन्ड से कितना पैसा मिला और बॉन्ड के बाहर कितना पैसा मिला। तो जो बॉन्ड के बाहर पैसा मिल रहा है वो भी एक बड़ी रकम है। जो फ्यूचर ये एक जो भारती ने ट्रस्ट क्या था, वो ट्रस्ट एक ट्रस्ट फ्लोट किया था, टाटा ने एक ट्रस्ट फ्लोट किया है। तो वो ट्रस्ट केवल बॉन्ड नहीं खरीद रहा है, वो ट्रस्ट डायरेक्ट पैसा भी देता है, वो चेक भी काटता है। तो निर्मला सीतारमण जी ब्लैक एंड व्हाइट की जो बात कर रही है कि ये सब व्हाइट मनी है, ये व्हाइट ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जरिया बना है। ये प्रशांत, इससे बढ़िया रोकना चाहूंगा प्रशांत भूषण जी, राजीव जी कुछ जोड़ रहे हैं। जी देखिए, इसमें सबसे बड़ा संदेह तो निर्मला जी के ऊपर में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, CBDT, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED जिसकी बात की जा रही है, जो दुनिया मतलब ये सारी कंपनीज के ऊपर में जिसने रेट डाला है, वो तो डायरेक्टली निर्मला सीतारमण जी को रिपोर्ट करता है। तो क्या बातें कर रही है ट्रांसपेरेंसी की और इन सब की।
और वो आज कर रही है जब ये डाटा सामने आ गया। भाई ईडी तो आपको रिपोर्ट कर रहा है, ये तो पूरे कटघरे में आपने होना चाहिए, शक तो आपके ऊपर में है कि आपके नाक के नीचे में ये सारे काम हो रहे हैं कि ईडी रेड मारी और उसके बाद में वो इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहे हैं। तो ये पत्रकार सवाल क्यों नहीं पूछ रहे डायरेक्टली मुंह पे कि मैडम आप ये बताइए कि ईडी तो आपको रिपोर्टिंग करता है, तो ईडी 4 दिन पहले रेड मारता है और चार दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए जाते हैं। तो ये तो क्लियरली पैटर्न शो कर रहा है। आपका इसमें क्या जवाब है? लेट हर स्पीक, जो भी उनको बोलना है। ये विपक्षी पार्टियों को सवाल पूछना चाहिए, वो क्यों खामोश है? ये उनका भी काम बनता है कि वो सवाल पूछे, भाई वो निर्मला सीतारमण जी से सवाल पूछे, वो जनता में ये बात को लेके जाए कि ईडी जो है, सीबीडीटी जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, ये डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, सब फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में आते हैं। तो निर्मला सीतारमण जी क्या कर रही थी जब ये सारी चीजें हो रही थी? जी राजीव जी। गंभीर सवाल है और वाजिब सवाल है, लेकिन उधर सुप्रीम कोर्ट में जो आज बात हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक फैसला सुनाया है, उस फैसले में जो डायरेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट का वो ये है कि 18 तारीख को, यानी आज से ठीक 3 दिन बाद, आज 15 तारीख है, 16, 17, 18 तारीख की शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर देने हैं एसबीआई को, और उस नंबर को इलेक्शन कमीशन अपलोड करेगा अपनी वेबसाइट पर। इस मसले को लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने क्या कुछ कहा है मीडिया से चर्चा में, जरा सुन लेते हैं। The court also raised the issue of the information submitted by the State Bank to the Election Commission about the particulars of the bonds, and they said that this information did not include the alphanumeric number of the bonds, so therefore they have not given full information about the people who purchased the bonds as well as the parties who redeemed the bonds, because that should have normally included the number, because the election commission had said that we can't do the matching of the donor and the recipient because there are 22,000 bonds and this information is kept in 2 different silos. So the court said that this, at least the numbers in each, the donor as well as for the recipient, should have been revealed, and therefore they issued notice, because today the Solicitor General said Election Commission, the State Bank is not here, State Bank is not a party, please issue notice to the Election Commission, to the State Bank. So the court has issued notice to the State Bank and listed this matter on Monday to hear this issue. तो अभी आप सुन रहे थे प्रशांत भूषण को। प्रशांत टंडन जी क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए राजीव जी, अगर ये जो सीक्रेट नंबर है, इसके बारे में परसों मैंने न्यूज आपके शो में बताया था कि सीक्रेट नंबर हम आप नहीं देख सकते इलेक्ट्रॉनिक डेटा से। उन्होंने दिया भी नहीं। अगर वो बॉन्ड की कॉपी भी अगर डाल दें तो भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि सीक्रेट नंबर फिजिकल बॉन्ड के ऊपर अल्ट्रावायलेट टॉर्च से देखा जा सकता है। ये सिक्योरिटी फीचर है उसका। तो सीक्रेट नंबर मालूम है एसबीआई को। अब सीक्रेट नंबर जब वो आएगा तो उसमें तो हमारे पत्रकार साथी, हम लोग खुद रिसर्चर्स एक्सेल में वो उसको डेटा को कॉपी करेंगे और एक नंबर को सॉर्ट कर लेंगे उस जो सीक्रेट नंबर है। तो एक सेकंड में एक्सेल शीट बता देगी कि ये नंबर इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ रहा है। तो ये तो एक कुछ मिनटों का काम है जिसको कर लेना। तो अब इसकी परतें देखिए राजीव जी, रोज खुलेंगी। अभी जब हम बात कर रहे हैं हजारों डेटा, 18,000 एंट्रीज में से कुछ एक कंपनियों के नाम हम देख रहे हैं। जैसे जैसे इसमें रिसर्च और सामने आएगी और एनालिसिस इसकी होगी तो बहुत बड़े बड़े मामले इसमें आएंगे। अभी जो मामले नहीं आए हैं वो मामले नहीं आए हैं जो डिफेंस के ठेके हैं। उन डिफेंस के ठेकों के नाम भी आने हैं राजीव जी।
कह रहे हैं डिफेंस के ठेकों के नाम आने हैं, नाम और भी कई कंपनियों के आने हैं, नाम उन शेल कंपनियों के भी उजागर होने हैं जो बाहर से पैसे इधर भेजकर इलेक्टोरल बॉन्ड जिन्होंने खरीदे हैं। तो बहुत कुछ यहाँ बाकी है। ये मत सोचिए कि जितना आ गया वही सब कुछ है, इसके पीछे भी बहुत कुछ है। 22,317 बॉन्ड की बात अगर एसबीआई ने कही थी तो यहाँ 18,000 कुछ बॉन्ड ही, और उनकी लिस्टिंग, ये जो लिस्ट आई है उसमें इतने ही क्यों हैं और बाकी 3,000 बॉन्ड कहां हैं? ये सारे सवाल भी विपक्ष पूछ रहा है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आपत्ति जताई है और जो सीजेआई ने डायरेक्टिव दिया है वो साफ साफ है कि कहीं ना कहीं एसबीआई कुछ छुपाने की कोशिश में अभी भी लगा हुआ है। और लेकिन क्या कुछ छिपाया जा रहा है ये जानना भी जरूरी है। हम लोग यहां लगातार चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके जरिए क्या कोई घोटाला है, क्या पैसों की हेरफेर है, या क्या जोर जबरदस्ती है कि आपको पैसे देना होगा वरना आपके ऊपर अलग अलग कार्रवाइयां होंगी, चाहे ईडी की छापेमारी हो, चाहे आईटी हो या कुछ और हो। क्या ये सब है? और क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खबरें लगातार आती रही हैं और उनकी चर्चा हम लगातार कर भी रहे हैं, इस चर्चा के दौरान भी कर रहे हैं। तो ये सब के बीच क्या ये एक बहुत बड़ा घोटाला है? जिस भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात नरेंद्र मोदी करते थे उन्हीं की सरकार में ऐसा कुछ हुआ है क्या? तो बहुत सारे सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को बार बार इंटरवीन क्यों करना पड़ रहा है? सुप्रीम कोर्ट को बार बार हिदायतें क्यों देनी पड़ रही हैं एसबीआई को? क्या इतना ज्यादा यहां सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एसबीआई जो है वो एक अलग दिशा में जाता हुआ, यानी कि आप कुछ भी कहिए, कुछ भी डायरेक्टिव दीजिए, लेकिन हम करेंगे वही जो हम चाहेंगे, ऐसा है। लेकिन 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि आप 6 तक दीजिए पूरी जानकारी, उसको न देकर आप जो है वो आप क्यों आने वाले समय में जो 12 तारीख को 12 थी ना तारीख, 12 तारीख को देना पड़ता है। तो बहुत कुछ इस बीच निर्मला सीतारमण ने आज एक कॉन्क्लेव में जो बातें कही हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। कह रही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड परफेक्ट नहीं है लेकिन पहले के सिस्टम से बेहतर है। ये कह रही हैं परफेक्ट नहीं है लेकिन पहले के सिस्टम से बेहतर है और इसमें वाइट मनी है। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो बहुत कुछ, बहुत सारे सवाल। लेकिन एक बार फिर से आना चाहता हूं राजीव जी, अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं जल्दी से, और एक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि यहां से पारदर्शिता की जो हम गुंजाइश देख रहे थे वो दिखाई देती है? क्या यहां से कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी दिखाई देगी चुनाव में? क्योंकि ये सब कुछ जो है वो एक ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने की प्रक्रिया है, चुनाव सुधार की ही प्रक्रिया का एक ये पार्ट है जिसको एडीआर लेके आया था। एडीआर के साथ कुछ और समूह जो हैं वो लेके आए थे और आज ये मामला यहां तक पहुंचा है। आपको दिखाई देता है क्या? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में ट्रांसपेरेंसी का मामला वो भी सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर भी सुनवाई होना है और अभी आप सुन भी रहे थे। उसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है ही तो, और इसके अलावा ईवीएम का मामला भी लगातार चल रहा है। बहुत तेजी से, मुखरता के साथ कुछ लोग कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों, चाहे नॉन पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों। तो चाहे ईवीएम हो, इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे नियुक्ति का मामला हो, इन सबको देखिए तो सुधार की गुंजाइश दिखाई देती है, या सुधार की तरफ गुंजाइश तो बहुत है, सुधार की तरफ बढ़ता हुआ चुनाव आयोग या ये देश जो है वो दिखाई देता है आपको? मुझे दिखाई देता है एक ऐसा राष्ट्र जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो 6 गुना ज्यादा ताकतवर है अपने मेन प्रतिद्वंदी विपक्षी दल के मुकाबले। मुझे दिखाई देता है एक ऐसा राष्ट्र जहां पर एक रीजनल पार्टी जो है वो ऑलमोस्ट सेकंड नेशनल पार्टी से ज्यादा चंदा पा रही है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, इस जो इंफॉर्मेशन यहाँ रिवील की गई है इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा, कि कैसे कुछ ऐसी कंपनीज और ऐसे लोग जिनको कल तक भारत में कोई नहीं जानता था, ना के बराबर लोग जानते थे, वो लोग जो हैं उभर कर सामने आए हैं सबसे बड़े डोनर के रूप में। तो ये कैसी पारदर्शिता है। मुझे ये भी दिखाई देता है इस लिस्ट के द्वारा कि जो भारत की 3 टॉप बड़ी कंपनीज हैं जो जिनका रेवेन्यू जो है वो कई राज्यों, बड़े राज्यों को कंबाइन कर ले उनके बजट तो उससे भी ज्यादा है,
ऐसी कंपनियां कंप्लीटली नदारद है इस लिस्ट में। तो ये कैसी पारदर्शिता है? मुझे ये भी दिखाई देता है इस लिस्ट के द्वारा कि जिन कंपनीज के ऊपर में ईडी ने छापे मारे हैं वो कंपनीज थोड़े दिनों बाद इलेक्टोरल बॉन्ड को सब्सक्राइब कर रही है, और उसके बाद में लिस्ट आने के बाद में फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है। तो ये कैसी ट्रांसपेरेंसी है कि जहां एक तरफ आपके अंदर अंतर्गत आने वाली इन्वेस्टिगेटिव बॉडी जो है वो रेड मार रही है, और वहीं दूसरी तरफ जिसके ऊपर रेड मारा जा रहा है वो चुनावी चंदा दे रहा है आपकी राजनीतिक पार्टी को। तो ये पारदर्शिता तो नहीं दिखाई दे रही है। ये नजर आ रहा है कैसे अनइवल प्लेइंग फील्ड बनाया जा रहा है। इट्स नॉट ए लेवल प्लेइंग फील्ड, इट्स कंप्लीटली अनइवन फील्ड वेयर ऑपोजिशन पार्टीज आर ऑन द रिसीविंग एंड। मतलब कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कमजोर विकेट पे हैं बनिस्पत जो आपकी सत्तारूढ़ पार्टियां जो हैं उसके मुकाबले। तो ये जो है ये एक ट्रांसपेरेंसी, एटलीस्ट हमको ये पता चल गया ये लिस्ट आने से कि भाई इन राजनीतिक पार्टियों को चंदा जो है वो पूर्णतः इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में नहीं मिला है। इनको जो चंदा है वो कई गुना ज्यादा चंदा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के बाहर है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी पार्टियां, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज है उसमें 3-4 नाम को छोड़ दे तो बाकी सारे नदारद हैं। तो ये किस मोड से दे रहे हैं पैसा? ऐसा तो है नहीं कि ये पैसा नहीं दे रहे होंगे इन चुनावी पार्टियों को, क्योंकि ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में है, ये जो है टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में है, ये ऐसे उस हर फील्ड में जहां पे गवर्नमेंट से आपको मिल के काम करना पड़ता है, बिना गवर्नमेंट के सहयोग के आप काम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चुनावी चंदा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दिखाया जा रहा है, इट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर स्कैंडल ढूंढना है तो हमको यहां से शुरुआत करना पड़ेगा कि जो टॉप 3 कंपनीज हैं इंडिया की टर्नओवर वाइज, पहली टाटा ग्रुप, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्री और तीसरा अदानी, उनका नाम क्यों नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड में सीधे तौर पे? और यदि सब्सिडरी के थ्रू भी है तो वो समुद्र में बूंद के माफिक उन्होंने, मतलब उस बराबर उन्होंने सिर्फ चंदा दिया, कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये ग्रुप्स कैसे मिसिंग है? ये कैसे दे रहे हैं? इन पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे फंडिंग कर रहे हैं? यहां से अगर कुछ शुरुआत करेगा तब जाके हम, जो मैंने कहा कि ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, हम पूरा का पूरा आइसबर्ग डिस्कवर कर पाएंगे। जी राजीव जी। प्रशांत जी, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो हम देख रहे हैं कि भारत की डेमोक्रेसी और भारत की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, दोनों को हाईजैक कर लिया गया। पार्लियामेंट क्या डिस्कस करती है, अदालतें क्या करती हैं, टेंडरिंग पॉलिसी क्या है, सील बंद लिफाफे में जो टेंडर खुलता है उसका क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं रह गया। अब तो जो सामने है और जो अखबारों की और मीडिया की हेडलाइन बनती है कि ईडी के अफसर आज यहाँ छापा मार रहे हैं, ईडी आज वहाँ छापा मार रही है, सब इस लिस्ट में सामने है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई छापे क्यों मार रही थी, इनके अधिकारियों को एक्सटेंशन क्यों मिल रहे थे, कुछ चंद अफसरों को एक्सटेंशन पे क्यों रखा जा रहा था। ये बिल्कुल साफ हो गया है। अब जो है वो गेंद भारत के लोगों के पाले में है कि इतना बड़ा घोटाला और एक व्यक्ति आपके सामने आके बड़े बड़े आदर्शवादी भाषण दे रहा है, उसके कपड़ों के पीछे ये चमकती हुई और दिन में 5 बार जो कपड़े बदले जा रहे हैं, उनके पीछे की राजनीति कितनी गंदी है कि देश को लूटने का काम हो रहा है। और अभी तो मैंने कहा कि अभी तो इसमें डिफेंस का आया ही नहीं है, क्योंकि वहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी राजीव जी, अभी तो वो बातें आई नहीं है पूरी। और एक आखिरी बात, देखिए, जब ये स्कीम लॉन्च हो रही थी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत इस पे जो है पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया था। हम याद दिलाते हैं कि जब पहली मीटिंग हुई, अरुण जेटली जब मंत्री थे और स्कीम को लॉन्च करने के लिए इलेक्शन कमीशन और आरबीआई को बुलाया गया, आरबीआई ने उस बैठक का बायकॉट किया था।
और आरबीआई ने अपना विरोध पत्र जो है अरुण जेटली को बाद में भेजा था, और उसी साल के अंत में आरबीआई के गवर्नर अपना टर्म बीच में छोड़ के इस्तीफा दे के चले गए थे। कारण क्या था आज तक नहीं समझ में आया है। दिखाई दे रहा है कि अब कारण क्या रहा होगा। तो अभी ये जिसको कहे कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी केवल इस जो पूरा घोटाला है उसका शायद हम 5% या 6% भी देख पा रहे हैं। अभी इसमें बहुत कुछ खुलना है, और अब देश की जनता के सामने ये जो है बात है कि आपको सरकारें कैसी चुननी है, क्या आपको भाषणों के झांसे में आना है। तमाम कानून नीतियों को भी करना पड़ेगा हम लोगों को अब, कि ये कृषि कानून क्यों लाए जा रहे थे। तमाम ऐसी बातें। राजीव जी जी बिल्कुल, चलते चलते दो खबरें आप तक पहुंचाना है। पहली बात तो ये कि कल 16 मार्च को होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। कल 16 मार्च शाम 3 बजे, कल दोपहर 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की, और कल चुनाव की घोषणा हो रही है। तो लोकसभा चुनाव का ऐलान कल होगा, और हो सकता है कि 6 से 8 चरणों में लोकसभा के चुनाव हों, और 16 मार्च को कल होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। तो एक ये ब्रेकिंग खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस ब्रेकिंग न्यूज में, कि चुनाव आयोग कल करेगा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल 3 बजे। चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी है और ट्वीट करके ये जानकारी दे दी है प्रेस रिलीज के जरिए। दूसरी एक ट्वीट आप तक पहुंचाना चाहता हूं, राहुल गांधी की ट्वीट। और राहुल गांधी कल से लेकर आज तक हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि इस पर क्या कुछ कहते हैं, लेकिन ये 16 जून 2015 का ट्वीट है, और उसको इन्होंने यहां फिर से रिट्वीट किया है। और पहले हमने कहा था कि सूट बूट की सरकार है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये सूट बूट और लूट की सरकार है। ये 16 जून 2015 का ट्वीट, और ये इसे काफ़ी अभी फिर से शेयर किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है। इस ट्वीट को भी यहाँ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत पहले ये बात रख दी थी, और वो यहाँ दिखाई दे रहा है कि जैसे उन्होंने कहा था, रखी थी जैसी अपनी बातें, और वही बात यहाँ पे दिखाई भी दे रही हैं। तो चलिए खैर, तो दो इंपॉर्टेंट, एक तरफ राहुल गांधी सूट बूट और लूट की सरकार, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग कल चुनाव की घोषणा करेगा। इस बीच जब चुनाव की बात हो रही है तो चुनाव में पारदर्शिता हो, चुनाव जो है वो एक अच्छी तरह से, और चुनाव सुधार की लगातार बात होती रहती है, तो उस हिसाब से भी इस देश में पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, और जो वोट आप और हम डालते हैं, जिनको डालते हैं, उसके खाते में जाए और गिनती उसकी ही हो। यहाँ और कहीं लूट का मामला न बने तो बेहतर होगा, यही उम्मीद है। चलिए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। राजीव रंजन सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे खरी खरी, और उसके बाद नजर और नजरिया, और शाम 7 बजे न्यूज पॉइंट देखना मत भूलिए। तो आप सबका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।